फर्स्ट तरह का रिप्रोडक्शन कौन हम लोग डिस्कस किए हैं? फर्स्ट Asexual. sexual reproduction. Yesterday we had started this topic, so let us continue with that. Asexual reproduction. In this, अरे कहाँ पहुँच गया यार? जैसे से कुछ भी प्रेस now हुआ stop discussing among yourself. Children, all of you get ready and select a peaceful corner. And nobody will talk. Don't talk. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Now all of you pay attention and listen to the topic which we are discussing. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. Your mic is mute. No, it is not mute, beta. Some problem is there on the camera. 1 minute, 1 minute. I will just. ये जो दिख रहा. नहीं ठीक है चलो सीधा दिखता हो. Listen children, is the blackboard visible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम जो लिख रहे हैं वो सीधा दिख रहा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिख रहा है. Yes, ma'am. दिख रहा है. Yes, ma'am. वही confusion था. उसी that why I had stopped it. चलो. Okay. Sexual reproduction
In this asexual two types of reproduction in plants, yesterday we have started. First is your asexual reproduction and second is your sexual reproduction. Today we are dealing with asexual reproduction. आज हम लोग बात कर रहे हैं asexual reproduction. इस asexual reproduction में कौन-कौन सा टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं? आप लोग budding, fragmentation, spore formation, Budding, fragmentation, spore formation. Yesterday we have studied. That is why I am asking you. कि budding का example कौन सा था? कौन सा example हम लोग लिए थे? Yeast. Yeast for example. Then fragmentation. fragmentation, The example was Spirogyra. or any else. Then Spore formation. Spore formation. Rhizopus bread mold. Mosses and fun. और नहीं हो गया, सुबह से टीवी देख रहे हो, 2.5 घंटा हो गया, एक पिक्चर खत्म हो जाती है बड़ी। चलो टीवी बंद करो। Vegetative propagation. vegetative propagation, ये अभी हम लोग budding, fragmentation, spore formation. Today we are going to deal with vegetative reproduction. लेकिन इसके पहले let's see that how is the bud form. Bud का formation कैसे होता है? जैसे सपोज करते हैं आपका yeast है, इसका ये सेल न्यूक्लियस ये सेकंड स्टेज में क्या होगा? थोड़ा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, बड का फॉर्मेशन होगा. Nucleus will start dividing. Then gradually in the third stage, nucleus will completely divide. And the protoplasm will get detached. इसके बाद दोनों स्टेप में ये अलग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा और ये अलग ऑर्गेनिज्म. So these are the stages of budding. ये budding का stages. Then after that we are talking about fragmentation. Fragmentation means इसका fragments होगा like this, and in each part there will be a nucleus. कहीं से भी अगर fragments टूटेगा, when it will break, then it will form another new organism. एक अलग नया organism का formation होगा. ठीक है? Then spores, the piece of bread if you are taking, then small powdery mass which is having a loop-like actual structure is like this, but when you are going to see, you will see that it will, you can see it like a dust, a powdery mass. जैसे हमारे मेरे हाथ में ये चॉक लग गया, आप उसी तरह से इसको टच करोगे तो आपको ब्लैक पैचेस या ग्रीन पैचेस आपके हाथ में लग जाए. तो ये ब्रेड मोल्ड का, लेकिन एक्चुअली जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा. ठीक है? Then we will talk about vegetative reproduction today. आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा vegetative reproduction, which is the fourth type of asexual reproduction. So let us see. उसके लिए हम लोग को complete ये टॉपिक लेना पड़ेगा.
because in vegetative propagation or vegetative reproduction, we are having reproduction to the vegetative part. हम लोग को vegetative part से reproduction शुरू है. So what are the vegetative part? In plant, vegetative part कौन सा है? Vegetative part कौन सा है? दीदी इन्वर्टर ऑन करो. जिससे हम लोग को ईडेबल पार्ट होता है या जो अपर मोस्ट पार्ट होता है जिससे हमको सपोज कर लो विच इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग लाइक योर स्टेम लीव्स रूट दीस आर द वेजिटेटिव. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फर्स्ट वन From stem. स्टेम पहला हमारा है. तो इसमें हम आपको कुछ एग्जांपल्स दें जो आप कॉमनली घर में भी देखते होंगे. क्या देखते हो? Potato. जैसे अभी Potato. पोटैटो Potato. न्यू पोटैटोज अभी आ रहा है मार्केट में और एक ओल्ड पोटैटो. ठीक है. तो जब ओल्ड पोटैटोज को लोगे जो कि कल्टीवेशन हुए या उसको अप्रूव किए हुए ज्यादा टाइम हो गया और वो कोल्ड स्टोरेज में हमारे पास आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड पोटैटोज. उसमें आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बड निकल रहा है फ्रॉम द कॉर्नर्स, फ्रॉम द पॉइंट्स. तो उसका आप इस तरह Yes, ma'am. इस तरह का आपके किचन में जाना, मम्मी से पूछना कि आप ओल्ड पोटैटो लाइए. आप देखोगे अगर ओल्ड पोटैटो होगा उसमें एक आउटग्रोथ होगा और वो आउटग्रोथ Yes, एक ma'am. पर्टिकुलर पॉइंट से और उस Yes, ma'am. पर्टिकुलर पॉइंट को हम बड बोलते हैं. ठीक है. तो उसका क्या Okay, ma'am. काम है, व्हाट इज इट्स यूज? उसका ये काम है कि ये अब फल क्या हो गया, पुराना हो गया. तो इसको हम लोग अब कल्टीवेशन में उसे ग्रोथ करने के लिए, उस प्लांट को ग्रो करवाने के लिए इसको अब हम लोग प्लांट कर सकते हैं. तो कैसे प्लांट करेंगे? इसको प्लांट करेंगे इस सेक्शन को कट करके. Potato, and if it is sowed inside the soil, then you will see that it will come out or it will grow into a new plant. वो एक new plant की तरह grow करने लगेगा. Yes, ma'am. This is known as vegetative propagation by stem. Because ये जो आपका पोटैटो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन. क्लियर? पोटैटो हमारा कोई फ्रूट नहीं है, वो हमारे स्टेम का मॉडिफिकेशन है जो आप लोग क्लास 6 में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़े थे. तो उसमें हम लोग ये डिस्कस किए थे कि कौन सा मॉडिफिकेशन. अभी हम लोग उस मॉडिफिकेशन पे नहीं जाएंगे. तो इसको हम लोग कहते हैं बड, जो पोटैटोज में आउटग्रोथ होता है और उससे हम लोग नए तरह का पौधा डेवलप कर सकते हैं. और इसको आइस भी बोला, इसको आइस भी बोला और इसको बड भी. बड इससे ग्रो. देन इस तरह का आप लोग को पोटैटो में भी देखने को मिलेगा. देन modified stem of ginger and turmeric. जिंजर और टर्मरिक में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर डेवलप होता है. और आपको एक सेकेंड तरह का जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम देखने को मिलता है वो है आपको अनियन में. और अनियन में आप देखोगे कि जब नया प्याज आ जाता है मार्केट में जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, जो कल्टीवेटेड है, वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड जब मार्केट में आता है तो ओल्ड वाले में, मतलब जिसका बहुत टाइम हार्वेस्टिंग हो गया, उसमें देखोगे कि मेन प्याज ये
अनियन में से ग्रीन आउटग्रोथ हो रहा है। सपोज कर लो ये आपका प्याज है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे ग्रीन ग्रीन कलर का आउटग्रोथ, जिसको लोकल आप लोग हम लोग घर में इसको डिस्क्राइब करते हैं कि प्याज जन्म रहा। जन्म रहा का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज दिस? व्हाट इज जन्मना? जन्मना का मतलब क्या हुआ? कि उसमें से आउटग्रोथ निकल गया। अब क्या होगा? ये आउटग्रोथ निकलने का मतलब हुआ कि दिस अनियन, ये जो अनियन है, इस अनियन से आप इसको सो कर सकते हैं। अब इसको आप डायरेक्टली स्लो सो करोगे तो आप उसमें से नया पौधा निकलेगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बल्ब। अनियन के स्टेल्स को, जो कर्व होता है अनियन में, उस स्टेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बल्ब। रिस्पॉन्स Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. बल्ब। जब आप प्याज को छीलते हो, when you just take out its skin, dry skin, तो उसमें क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट layers होता है। These layers they are known as bulb. So bulb. And this bulb is now ready to produce stem, और वो ready to produce a new plant. वो एक new plant produce कर सकता है, एक नया stem produce कर सकता है। Then third example which is given, that is forms in plant like gladiolus and colocasia, which is also known as अरबी। थर्ड तरह का पौधा जो होता है उसका नाम है ग्लैडियोलस, जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी शो देखा जा सकता है, या कोलोकाशिया, और दिस इज नोन एज फॉर्म। अब इसमें दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शोन थ्रू स्टेम। वो स्टेम की तरह ही है लेकिन उसका अलग प्रोसेस है, उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज नोन एज फॉर्म। अब अरबी का स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह का अरबी देखते हो, ये जनरली हमको रेनी सीजन में मिलता है, और ग्लैडियोलस ये सब swollen at the, and it is grown inside the ground. Ground is inside. Onion is also grown inside the soil, but it is just a, और इसके जो पार्ट जिससे हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाते हैं या जो होता है, उसको हम लोग जैसे उसमें क्या यहाँ क्या हुआ? बल्ब कहते हैं और ग्लैडियोलस या कोलोकाशिया में इसको कॉर्म बोला जाता है। And these are generally the part which has to be sown into the soil, and then it can develop into a new. Then again, vegetative reproduction which is seen in the stem of cacti. Cacti में देखा जाता है। ये अलग-अलग example है। इस चीज का example vegetative reproduction by stem, जो आप देख रहे हो, पोटैटो में देख रहे हो, अनियन में देख रहे हो, कोलोकाशिया में या अरबी में देख रहे हो, but the name of that particular part which is sown to produce the stem or which is sown to produce the plant is different. Here in cacti, cacti में क्या होता है? We see the इस तरह से स्टेम का आउटग्रोथ होता है, स्पाइन्स होता है सब पूरी जगह। तो ये जो पार्ट्स है, these parts get detached और ये अलग से दूसरा पौधा बन जाता है। This can be detached and so. Then vegetative reproduction in stem can be seen in case of your this China rose,
or rose, guava, bougainvillea, jasmine. These all are the plants which can show vegetative reproduction. ये सारे पौधे vegetative reproduction show करते हैं. Now, one thing you have to understand over here, two things. कि ग्राफ्टिंग क्या होता है, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम का ही पार्ट है. ग्राफ्टिंग क्या होता है और लेयरिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हैं. ये इसी टॉपिक के अंदर ये टर्म आता है ग्राफ्टिंग. तो व्हाट इज ग्राफ्टिंग? ये ग्राफ्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस, कभी आप लोग कहीं नए जगह जहाँ प्लांटेशन होता है अपने विलेज में या अपने गार्डन में, कभी देखे हो कि एक रोज का प्लांट कट करके और हम लोग दूसरे जगह उसको अगर लगाते हैं तो वो एक नया इंडिविजुअल प्लांट ग्रो कर सकता है. लेकिन होता है ना, लेकिन उसमें आपको अगर वो कलर को मिक्स करना, जैसे सपोज कर लो आपको रेड और येलो कलर मिक्स करके कोई नया पौधा, नया कलर का रोज प्लांट डेवलप करना है, तो उसके लिए ग्राफ्टिंग किया. कैसे करेंगे ग्राफ्टिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोग देखिए, इसका एक सपोज कलर सपोज ये आपको दो तरह का पौधा है. वन इज ऑफ येलो कलर एंड अदर इज ऑफ रेड. तो अपर पार्ट हम लोग अपर पार्ट को स्क्योन बोलेंगे और नीचे वाले पार्ट को स्टॉक बोलेंगे. स्टॉक, ठीक है. अब इसको करना चाहिए. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक सम मड, थोड़ा मड लेना है, दोनों को अटैच करना है, प्लेसिंग वन अबव द अदर, और इसको जॉइंट कर देना है बाय रैपिंग इट थ्रू सम बायोडिग्रेडेबल रैपर्स और सम टाइप ऑफ बिगर लीव्स, जो भी है, जिससे कि दोनों क्या हो, get it attached one upon the other. तो आपको जो यहाँ पर क्या होगा, जिसमें दो रेड कैरेक्टर and yellow and this one which we have developed is from येलो का. इसको अटैच कर दिए, तो दोनों का कैरेक्टर इसमें आ गया. दोनों का कैरेक्टर आने के बाद, दोनों का कैरेक्टर आने के बाद जब आप इसको डिटैच करके, ये पूरे को डिटैच करके तो आप देखोगे कि हर तरह का इसमें ग्रो कर रहा है, जिसका पिंक कलर का रेड येलो, थोड़ा पिंकिश येलो या लाइट येलो या पर्पल, इस तरह का कॉम्बिनेशन का कोई नया प्लांट डेवलप, नया फ्लावर उसमें से निकलना. ठीक है. तो दिस यू हैव अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Ma'am, can you repeat layering? मैंगो ट्री में, रोज प्लांट में, साइट्रस प्लांट में ग्राफ्टिंग प्रोसेस फॉलो किया जाता है. देन सेकंड इज योर लेयरिंग. ये जिसका पौधा बहुत लंबा होता है, जैस्मीन, जैस्मीन के पौधे में लेयरिंग किया. उसमें क्या किया? लेयरिंग में जैसे बहुत बड़े बड़े टॉल प्लांट्स है जिसका कि ब्रांचेस को बेंड किया जाए, तो इफ इट इज बेंडिंग,
So we have to bend it so much that it is touching the ground. वो ground को touch करे. So ground को touch करेगा. When it will come in contact with the soil, you have to keep it pressed inside the soil for a few days, for 1 week, 2 weeks, unless and until it develops its root over. और जब वहाँ पर वो root develop करेगा, then you have to detach it from the parent. और तब उसके बाद इसको हम डिटैच कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, नया पौधा. This is done in that type of plant which has got long branches which can bend, जो bend कर सकते. मैम जैस्मिन का युग जाएगा. लेयरिंग प्रैक्टिस होता है, जैसे कि हम देखते हैं इसको वेरी गुड. और ड्राफ्टिंग में होगा, रोज में होगा, मैंगो में होगा. ठीक है. देन ये अभी तक हम लोग कौन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम. बाय स्टेम. स्टेम में ही इतनी तरह की बातें. ठीक है. अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पे जा रहे हैं जिसका है टर्म वेजिटेटिव लीफ. वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स. लीव्स. हाँ, लीव्स. Vegetative propagation by a very good example is your bryophyllum. In bryophyllum, the leaves have got notches. उसके leaves में notches होता है. What does this notches mean? Notches का मतलब क्या है? एक बेंडिंग होता है कर्व, और इस कर्व के पास एक बड की तरह आप देखोगे डेवलपमेंट. किसी के गार्डन में इस तरह का प्लांट होगा, then you can take the help of it to understand. आप क्लास में भी नेक्स्ट क्लास में इसको शो कर सकते या ग्रुप में डाल सकते हो, पिक्चर अपलोड कर सकते हो. Notches are these portions which contains the bud. और इस बड वाले पोर्शन को कट करके अगर हम दूसरी जगह प्लांट करेंगे सॉइल में, then it will grow into a new bryophyllum. इसमें कोई खास बात नहीं है. इसमें वो स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है ब्रायोफाइलम का कि उसमें बड की तरफ डेवलपमेंट होता है. और वो डेवलपमेंटल बड they can be sown into the ground, develop into plant. Clear? Directly. Then after that, vegetative propagation from roots. Now ये आपका थर्ड तरीका है, vegetative propagation by roots. This is seen in sweet potato. कोई sweet potato खाया है अभी? आज तक कोई sweet potato खाया है या नहीं खाता? जिसको आप लोग शकरकंद या मिश्रीकंद कहते हो, जो मार्केट में अवेलेबल होता है. सरस्वती पूजा के टाइम में हम लोग बहुत इसको परचेज करते हैं. ठीक है. ये नेचुरली एक तरह का रूट है और उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ फूड रहता है और उसके कारण वो फूला हुआ रहता है, स्वेल्ड रहता है, और ये आपको डायरेक्टली सो करने पर इसके पार्ट को आपको एक नया प्लांट मिल जाए. ठीक है. Then one of these topics we have discussed
अब आपको हम बता देते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हैज अ नंबर ऑफ एडवांटेज ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर इस पर बहुत सारा इसका बेनिफिट्स कि क्या क्या बेनिफिट है कि इट टेक्स लेस टाइम टू ग्रो, इट आल्सो बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर टू द प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। इसमें जल्दी फल फूल लग सकता है। न्यू प्लांट इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट प्लांट। ये सब उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसका बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स है। These are the beneficial aspects. Then the new plant are exact copy of parent plant and have the same desirable character as those of their parent plant. Then they have got so many advantage, but there is one disadvantage. एक disadvantage. What are its disadvantage? That all such plants are identical. So the disease which will be caused in one plant will affect the whole plant, all the plant of that community. तो ये इसका क्या है, harmful aspect. This is the harmful aspect of the vegetative. Useful aspect बहुत है, मतलब advantage बहुत है, लेकिन disadvantage एक. Advantage क्या है? Advantage है कि ये जल्दी लेस टाइम में ग्रो कर सकता है, टेक्स लेस टाइम टू ग्रो, देन इट कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर एंड देन द सीड्स प्रोड्यूस्ड by those plant which is carried out through sexual reproduction. The new plant is the exact copy of the parent plant and can have the same characters as that of the parent plant. But one disadvantage is also there. And what is its disadvantage? The disadvantage is that if a disease is caused in one plant, then it will be carried. अगर parent plant में कोई disease है, तो वो उसके offspring या उसके दूसरे plant में भी carry forward हो जाए. ठीक है? तो till here, anyone who has not understood? कोई बात जो आप नहीं समझ पाए? मैम ग्राफ्टिंग में वेरिएशन होता है ना मैम? हाँ, ग्राफ्टिंग में वेरिएशन होगा. वेरिएशन यही होगा कि उसमें आपको डिजायर्ड कैरेक्टर्स नहीं आ सकता है, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा कि आप उसको किस तरह से प्लेस करना है. ठीक है? तो मैम वेरिएशन इस एडवांटेज का मैम वो एक्सेप्शन हुआ ना कि the new plants are exact copies of the parent plant. हाँ, वो exception. In grafting process, that is the exception. और कुछ? Then, as you all know that in December you have science